تو ناظرین، ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں نیشنز ہاکی کپ کا فائنل جاری ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ پہلے کوارٹر کا کھیل جاری ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان فائنل میچ جاری ہے۔ پاکستان پہلی بار نیشنز کپ کا فائنل کھیل رہا ہے اور آج دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس میچ میں نیوزی لینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس وقت ملیشیا کے شہر کوالالمپور کے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ نیشنز ہاکی کپ فائنل جاری ہے اور کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین۔ آمنے سامنے ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ۔ پہلے کوارٹر کا کھیل اس وقت جاری ہے اور ابھی تک کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کا کھیل ہو چکا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایک گول نیوزی لینڈ کی جانب سے کر دیا گیا ہے اور اس وقت مقابلہ 1-0 جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کو ایک گول سے پاکستان سے برتری حاصل ہے۔ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں نیشنز ہاکی کپ کا فائنل اس وقت جاری ہے۔ نیوزی لینڈ نے ایک گول کر لیا ہے اور پاکستان ابھی تک کوئی بھی گول کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کمپلیٹ ٹائم سے پہلے پاکستان 2 گول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ میچ میں پینلٹی شوٹ آؤٹس تک گیا میچ اور اس کے بعد پاکستان نے وہ میچ جیتا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے یا نہیں۔ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں نیشنز ہاکی کپ کا فائنل جاری ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یورپ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ایران اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اس کے ارادے پرامن ہیں۔ ایرانی صدر واضح کیا گیا کہ ایرانی جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 3 سینئر ایرانی علماء کو اپنا ممکنہ جانشین نامزد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سینئر کمانڈروں کے مارے جانے کی صورت میں اہم فوجی عہدوں کے ممکنہ جانشین بھی نامزد آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مشتبہ امیدواروں میں شامل نہیں ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 3 سینئر ایرانی علماء کو اپنا ممکنہ جانشین نامزد کر دیا ہے۔ سینئر کمانڈرز کے مارے جانے کی صورت میں اہم فوجی عہدوں کے ممکنہ جانشین بھی نامزد کر دیے گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے OIC اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کا غم ہمارا غم ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے علاوہ لبنان اور شام میں بھی حملے کیے۔ نیتن یاہو نے ثابت کیا ہے وہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کسی بھی تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ایرانی حملے حق کے دفاع میں ہیں۔ اسرائیل خطے میں تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو تمام دنیا کو خطرناک صورتحال کے دہانے تک لے آیا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، 30 سے زائد میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں دھماکے، سائرن بج اٹھے۔ شہریوں میں شدید خوف و ہراس، شیلٹرز میں جا گھسے۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ حملے نئے میزائل سلوں سے کیے۔ اسرائیلی شہر تل ابیب، حیفا کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ مائیکروسافٹ کی مالک کے قریب میزائل حملے سے ٹیک ٹاور میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ 10 افراد زخمی۔ ایران کے تل ابیب اور حیفا میں 100 سے زائد ڈرون حملے ہوئے، 27 اسرائیلی زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ سجل 2 میزائل سے اسرائیل میں ہر طرف تباہی۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائل کا راستہ نہیں روک سکا ہے، جبکہ ادھر اسرائیلی جنگی جارحیت بھی جاری ہے۔ ایران کے 21 صوبوں میں اسرائیلی حملے، 639 ایرانی شہید، 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ختم ہونی چاہیے۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا کا OIC کے 51ویں اجلاس سے خطاب، کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کا حل تلاش کیا جائے۔ موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ حکام فدان OIC کے نئے چیئرمین نو منتخب چیئرمین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلم امہ غزہ اور ایران کے دفاع کے لیے متحد ہو جائے۔ اسرائیل اس وقت ایران پر حملے کر رہا ہے اور یہ وقت ہے کہ مسلم ممالک مشترکہ موقف اپنائیں۔ اسرائیلی حملے نہ صرف فلسطینی عوام کے لیے خطرہ ہیں بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل حملے جاری رکھے گا، خطے میں
में अमन और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इफ्तिदा ने बतौर चेयरमैन OIC मुस्लिम मालिक को करीब लाने के आज़म का इजहार किया। इसराइल के खिलाफ हमले मुल्क की दिफा में हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महजरानी ने कहा कि ईरान अपना दिफा कर रहा है मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान ने 200 साल से कोई जंग शुरू नहीं की। ईरान मुज़ाकरात का हामी है, इसीलिए ईरानी नुमाइंदे जिनेवा में मौजूद हैं। इसराइल ने रात के वक्त बच्चों, ख़वातीन, साइंसदानों और आम शहरियों को निशाना बनाया। उनका कहना था कि ईरान अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा में किसी किस्म की कोताही नहीं करेगा। अगर इसराइल मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां करता है तो ईरान का रद्द अमल खौफनाक होगा। ईरान की कुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद एज़ी तेहरान में फ़िज़ाई हमले में शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा, कहा एज़ी हमास को 7 अक्टूबर के हमले से कबल असलहा और माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। एज़ी को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली इंटेलिजेंस और फ़िज़ाइया की बड़ी कामयाबी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी देते हुए कहा कि इसराइल अपने तमाम दुश्मनों को निशाना बनाएगा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी को एक नहर बनाकर राजस्थान तक ले जाएंगे। पाकिस्तान पानी से महरूम हो जाएगा जो उसे बिला जवाज मिल रहा है। मौलाना हामिदुल हक शहीद और मौलाना फजलुर रहमान पर हमलों में मुलव्विस ग्रुप की निशानदही हो गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना हामिदुल हक पर हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल कर दी गई है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या कुछ सामने आया बताएंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे शहजादा फ़हद। जी फ़हद। जी बिल्कुल, मौलाना हामिदुल हक शहीद और मौलाना फजलुर रहमान पर हमलों में मुलव्विस ग्रुप की निशानदही हो गई है और आला सरकारी ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया और मौलाना हामिदुल हक पर हमले में मुलव्विस खुदकश हमलावर जो था उसकी कौमियत की निशानदही भी कर ली गई है। गैर मुल्की खुदकश हमलावर मदरसे के बाहर से दाखिल हुआ दहशतगर्द ग्रुप ने मौलाना फजलुर रहमान को भी निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। 11 मई को ग्रुप ने मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर में निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की। हमले के लिए भेजे गए 4 में से 3 खुदकश हमलावरों को 10 मई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। मजीद बताया गया है कि चौथे खुदकश हमलावर को पुलिस ने रिंग रोड पर रोका। पुलिस के रोकने शहजादा फ़हद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपनी पाक फ़िज़ाइया के कारनामों पर फ़ख्र है। पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ में सदर आसिफ अली ज़रदारी का अहम किरदार है। आज ये जो जंग अल्लाह ने आपको जिताई है, अपने से खैर कई गुना ज़्यादा दिफा पे फंड लगाने वाले मुल्क के मुकाबले में अल्लाह ने हमें वो इज़्ज़त दी कि इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हमने अपने दुश्मन को नॉकआउट किया। आपने आर्मी चीफ को, आपने प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितना इंटरनेशनल मीडिया है उस पर अगर पाकिस्तान के मुकदमा किसी ने लड़ा या किसी ने अगर इंटरनेशनल मीडिया को फेस किया तो वो सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। जैसे आप सबको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम की बुनियाद रखी और इंतहाई मुश्किल हालात में, और सिर्फ एटम बम की बुनियाद नहीं रखी गई बल्कि आज आपको अपनी एयरफोर्स पे फ़ख्र है। और 65 में एयरफोर्स ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, 71 में किया, 2019 में किया, 2025 में किया। तो जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा है उसकी बुनियाद भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इसराइल और ईरान जंग में पाकिस्तान का दो टोक और वाज़िब मौक़िफ़ है। इसराइल ने जारहियत का इंतखाब किया है, हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने इस मसले को सिक्योरिटी को
काउंसिल में भी उठाया है। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी के लिए अपने तमाम सिफारती ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। पूरी कोशिश है कि खित्ते का अमन महफूज हो सके और इस जारहियत को रोका जा सके। हम किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ जारहियत कबूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जारहियत की थी, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का भेस बदल कर जनरल हॉस्पिटल का दौरा। मरियम औरंगजेब आम शहरी के तौर पर हॉस्पिटल पहुंची, मास्क पहनकर मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरियम औरंगजेब ने हॉस्पिटल की इमरजेंसी का भी मुआयना किया। इमरजेंसी में सफाई और इलाज मुआवजे की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई गई। अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब का ऑडियो पैगाम भी स्पीकर पर जारी था। हॉस्पिटल में तमाम मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी जारी थी। हॉस्पिटल में अद्वियात की अदम फराहमी पर हेल्पलाइन पर कॉल करने का ऐलान भी जारी था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात ओवैसी इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचा। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। आप दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरादराना ताउन को मज़ीद मजबूत और मतनू बनाने के आज़म का यादा। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। आलमी बरादरी खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे, रहनुमाओं का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से ये मुलाकात हुई। मुलाकात ओआईसी इजलास की साइड लाइन्स पर हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई हीरोज़ को खिराजे तहसीन। ईद उल अज़हा पर बेमिसाल और बर्क रफ्तार सफाई का समर वर्कर्स को इनामी रकूम के चेक मिल गए। ईद उल अज़हा के तीनों दिन बेहतरीन सफाई इंतजामात पर वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार इनाम का ऐलान किया गया था। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब की 123 तहसीलों में सफाई वर्कर्स के एजाज़ में शानदार तकारीब। सफाई वर्कर्स खुशी से नाच उठे, ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। पंजाब भर में मुनाकिदा तकरीबात में सफाई वर्कर्स को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। सफाई वर्कर्स पहली मरतबा बेमिसाल पजीराई पर खुशी से निहाल। सफाई वर्कर्स के एजाज़ में तकरीबात में वज़ीर आला की हिदायत पर अवामी नुमाइंदों की शिरकत। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शरीक हुए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।